Hello students, it's me Dinesh Mishra and you are welcome in the online classes of UBPS. Today we shall take the first chapter of our SST history book entitled The French Revolution. And before starting this session, it is very important to tell you that I request you to join you more and more in order to take the advantage of this online classes. सारी क्लासेस चल रही हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग हों, आपके फ्रेंड्स हों, उनको भी आप इन्फॉर्म करें, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप बताएं, शेयर करें और उन्हें भी ग्रुप से जुड़ने के लिए प्रेरित करें ताकि हम लोगों के प्रयास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सभी बच्चों को मिल सके। तो हम लोग आज जो है अपने जो है एसएसटी का जो है तो एसएसटी में सोशल स्टडी और सोशल साइंस बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू आर एंटरिंग फ्रॉम द क्लास 8 to 9, therefore it is very important to tell you what is social science and what is social study. What is the difference between the social science and social study? Why this subject is called SST and not a social science? So the basic difference between the social science and the social study is that in social science we study exclusively the social relationships between man to man, between institution to institutions, and the interaction that take place within the society. So the scientific study, orderly study of the society as a whole in terms of social relationship and social organization, that is called social science, and it is the exclusive subject matter of the study of social science. Now when we encompass or incorporate the other humanitarian subjects like economics, geography, politics, anthropology and other social sciences in the study of social science, then it becomes social study. So now I think that you will have well learned the difference between social science and social study. Now we shall take the history book of your prescribed course and its first chapter, the French Revolution. Before starting this very chapter, इस अध्याय के शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जान लेना बहुत आवश्यक है, जिसकी पृष्ठभूमि में हम फ्रांसीसी क्रांति के कारणों, फ्रांस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा का विश्लेषण करेंगे कि किस वजह से और कैसे ये क्रांति हुई, इसके क्या परिणाम हुए। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द रिस्पॉन्सेज ऑफ दीज क्वेश्चंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. So I will erase this and pass out the blackboard to get more space, so that you could easily understood. Today you know that you are already studied and you are well acquainted from the concept which I am going to write on the blackboard. The first is equality, second is justice, third is liberty, and fourth is fraternity. Today these four terms, it is the equality, social equality, political equality and economic equality.
All these four values are the core feature of a democratic state. Democratic state. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये चार जो है आधुनिक लोकतंत्र के आधारभूत मूल्य हैं. These are the fundamental values, core values of a democratic, modern democratic state, and they are today granted. These are the default value of modern state. We can say, हम कह सकते हैं कि आज के जो आधुनिक राज्य हैं उनके ये इनबिल्ट फीचर्स हैं. आज हम जब भी किसी देश का नाम लेते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं, तो इसमें चारों मूल्य जो है सन्निहित होते हैं. बट दीज वेरी बेसिक वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट वर मिसिंग इन मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक feature of a democratic state. Now we shall have a glance on the features of a absolute state, the aristocratic form of governance, or what we can say monarchical form of governance. ये लोकतांत्रिक राष्ट्र की जो है विशेषता होती है गणराज्य की. अब हम लोग देखेंगे कि मोनार्की की क्या विशेषता होती है. आपने देखा मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. इसमें आप देखेंगे कि देयर आर ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटरी रूल. किसी भी राजतंत्र में राजतंत्रात्मक जो है शासन प्रणाली का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसकी एक विशेषता होती है डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटरी रूल. जो नियम बनते हैं वो विभेदात्मक होते हैं. डिफरेंशियल जो है रूलिंग होती है. कहने का मतलब यह है कि कानून के समक्ष, विधि के समक्ष हर कोई बराबर नहीं होता है. There are discrimination in a monarchical form of government among the different state of the society. समाज के अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग प्रकार के, एक ही क्राइम के लिए, अपराध के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था होती है. अगर कोई क्राइम साझा कलर का करता है तो उसको प्रिविलेज प्राप्त होता है. हो सकता है उसको उस अपराध से छूट प्राप्त हो, लेकिन समाज के किसी ऑर्डिनरी पर्सन के द्वारा अगर उसी रूल को वायलेट किया जाता है, उस कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो उसे कड़े दंड दिए जाते हैं. तो इस प्रकार का जो रूल होता था उसे हम डिस्क्रिमिनेटरी रूल कहते थे और वो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की पहचान होती थी. तो असमानता जो है, इनइक्वालिटी, एक मूलभूत जो है फीचर हुआ करती थी मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम फ्रांसीसी क्रांति के कारणों पर बेहतर ढंग से जो है उसका विश्लेषण कर सके, उसे समझ सके. ऐसा पढ़ें कि कभी भूले. तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मोनार्किकल गवर्नेंस क्या होती है, उसकी क्या विशेषता थी, क्या डिमेरिट्स थी, क्या मेरिट्स थी, उसको जान लेते हैं. फिर जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, उसको जान लेंगे. दोनों से कंपेयर कर लेंगे. तभी तो हमें पता चलेगा कि लोगों ने, फ्रांसीसी लोगों ने तत्कालीन एग्जिस्टिंग जो सिस्टम था उसके प्रति विद्रोह, उसके प्रति जो है क्रांति क्यों लाए, लोगों ने उसका जो है विरोध क्यों किया, किस तरह से समाज की पुरातन, फ्रांसीसी समाज की पुरातन व्यवस्था जिसको ओल्ड रिजीम कहा गया है, किस तरह से वहाँ सामंती युग की समाप्ति हुई, किस प्रकार से वहाँ राजतंत्र का अंत हुआ और आधुनिक जो है मॉडर्न जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की फ्रांस में स्थापना हुई. इसके लिए इसे आपको जानना बहुत जरूरी है. तो डिस्क्रिमिनेटरी रूल होता है
दूसरे कि पीपल बिलीव एंड हैव allegiance to the divine theory of kinship। लोग जो है दैवी राजत्व के सिद्धांत में विश्वास करने वाले होते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप, जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे कि दैवी राजत्व के सिद्धांत का खंडन किया जॉन लॉक ने, और रूसो ने भी किया, मॉन्टेस्क्यू ने भी किया। जॉन लॉक ने अपनी 2 ट्रेटाइजेस ऑफ द गवर्नेंस में लिखा, और जो रूसो ने भी जे रूसो ने भी अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में लिखा कि जो राजत्व का सिद्धांत है वो बेबुनियाद है। तो वहाँ जो है एक मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में केवल 2 संबंध होते थे, किंग्स एंड सब्जेक्ट्स, राजा और प्रजा। ओनली एंड द king and its royal family had certain royal privilege to rule over the subjects by birth। और सत्ता पर राजा और राजा के घराने का जो है जन्मजात जो है जनता के ऊपर शासन करने का अधिकार होता था। दैवी राजत्व के सिद्धांत के अनुसार द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। लोग मानते थे कि धरती पर जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, और उसके खिलाफ जनता का विद्रोह करना पाप है, और एक ही राजा का आज्ञा मानना ईश्वर के आज्ञा मानने के बराबर है। तो इस तरह की सोच लोगों के अंदर रहती थी, बिकॉज द सोसाइटी वॉज हाईली रिग्रेसिव। जो मामूली जन थे, जो साधारण जनता होती थी, दे वेर इग्नोरेंट एंड मोस्टली द पीपुल्स वेर इलिटरेट, ज़्यादातर लोग अशिक्षित थे। देयरफॉर देयर वेर लैक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, उनके अंदर जो है नए विचारों की कमी थी, और वो लोग मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की जितनी जो है शॉर्टकमिंग्स थी, बुराइयां थी, उन सबको झेलते चले। मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक तीसरी विशेषता रहती थी, डिस्क्रिमिनेशन हो गया और दैवी राजत्व का सिद्धांत हो गया। पीपुल्स, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी इन वन हैंड। राजत्व के सिद्धांत या जो राजतंत्र का एक तीसरी विशेषता है कि राजतंत्र में जितनी भी पावर शक्तियां होती थी वो एक ही व्यक्ति, दैट इज द किंग, उसके हाथों में कॉन्सेंट्रेट रहती थी। ऑल काइंड्स ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियल पावर, राजा ही न्याय करता था, राजा ही सारे जो है कानून बनाता था, राजा ही समस्त प्रकार के फैसले लेता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर वाज नो चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल्स टू बी अप्लाइड ऑन द मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, राजा पावर नहीं शेयर करता था, और जितनी शक्तियां होती थी वो एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहती थी। अब आप सोचिए कि इस तरह के हालात में, और मोस्टली द किंग वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, द गवर्नमेंट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल विद द पीपल और इट्स सब्जेक्ट्स। राजा जो होता था वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, बिकॉज ही वाज नॉट इलेक्टेड
by the people, but he was ascended on the throne by birth according to the divine theory of kingship, क्योंकि वो दैव के अनुसार शासन के उस पद पर पहुंचने का जन्म सिद्ध उसका अधिकार था। इस कारण वो जन आकांक्षाओं की उपेक्षा अक्सर करता था, जिसके खिलाफ लोगों के अंदर तमाम प्रकार के असंतोष पैदा हुए। Now in this very background, we shall begin with studying the beginning and end of the French Revolution. इस दो प्रकार की शासन व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत और उसके अंत तक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हम आपको ले चलेंगे पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हम लोग सैर करेंगे। वी शैल ट्रांसपोर्ट आवरसेल्फ in the Paris city of France, and it was the morning of 14th July 1789। 14 जुलाई 1789 इस सुबह का वक्त था। इट वॉज द मॉर्निंग टाइम ऑफ 14th July 1789 in the Paris city। The situation was quite tense, और हालात जो थे उस शहर के काफी तनावपूर्ण थे, because there was a rumor spread among the public in the city, throughout the city, that the royal king had sent its troops to open fire on the agitating mobs who were agitating. Some 7,000 men and women have gathered in front of the town hall of the Paris city in order to form a People's Militia। पीपुल मलेशिया को संगठित करने के लिए एक तरह का ये आतंकी संगठन भी, यूं आप कह लीजिए, बनाने के लिए कोई 7-8 हजार महिला और पुरुष टाउन हॉल के सामने गैदर्ड हो गए। एंड व्हेन दे heard that the king had sent the troops to open fire upon the agitating masses, तो लोगों का गुस्सा जो है, जो डिस्कॉन्टेंट था, वो और बढ़ गया। They entered into the fortress prison, और ये जो लोगों का हुजूम था वो घुस गया जो है फोर्ट्रेस प्रिजन में, बेस्टिली जिसको बोलते हैं, बेस्टिली फोर्ट। ये एक तरह की जेल थी वहाँ की, उसमें लोग घुस गए। द पीपल्स गॉट इनटू और broke into the Bastille prison and set free all the prisoners who were captured by the kings and had put behind the bars। जो इनको पकड़ के राजा ने उस किले में बंदी बना रखा था, उन सबको मुक्त कर दिया। एंड they had attacked on the Bastille with a purpose to loot the arms and ammunition which were hoarded। They had conjectured so, लोगों ने, ये जो भीड़ थी, जो क्रांतिकारी थे, उनको यह अंदाजा था कि इस जेल में बहुत सारे हथियार, अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं और उसको लूटने के उद्देश्य से उन लोगों ने उस पर हमला किया। They damaged and demolished this very fortress prison, और उन लोगों ने इस प्रिजन को जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और these remains of these damaged fortress were sold in the market as a souvenir as a remembrance। souvenir में as a remembrance, जैसे स्मारक के रूप में। जो पत्थर थे
because the Bastille was considered as the symbol of discrimination, injustice, inequality एंड स्लेव। चूंकि लोग बैस्टिलिक फोर्ट्रेस को क्या मानते थे, वो प्रतीक था अन्याय का, असमानता का और गुलामी का प्रतीक था। तो जो लोग बैस्टिलिक पैलेस को इन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने जब धराशायी कर दिया, तो लोगों ने उसकी एक एक ईंटें जो है बाजार में बेची गई और लोगों ने उसे एज ए सुवेनियर, एक रिमेम्बरेंस के रूप में उनको खरीद के स्मारक के रूप में अपने पास रखा, जो कि फ्रांस के सामंती व्यवस्था के अन्याय का जो है एक अविस्मरणीय जो है उदाहरण, यादगार। Soon the news of the fall of the Bastille spread throughout the all other cities and countryside of the France। ये फ्रांस के तमाम शहरों में, देहात में ये समाचार बहुत तेजी के साथ फैल गया। एंड दिस the coming days proved to be resulted or culminated into greater chaos, disturbance, tension, riots in the different cities and countryside of the France। फ्रांस के तमाम जो है क्षेत्रों में, शहरों में, गांवों में दंगे होने लगे। जगह जगह पर द क्लासेस डेवलप्ड बिटवीन द पीजेंट्स, द नोबल्स, द मेंटर्स। इन लोगों के बीच जो है आपसी जो है राइट्स हो गए, दंगे हो गए। लोगों ने सामंतों की जमीनों पर कब्जा कर लिया, उनके जो स्टोरेज थे, वेयर हाउसेस थे, उनको लूट लिए। तमाम इस तरह की घटनाएं हुई और फाइनली जो है द पीपल्स गैदर्ड इन द टेनिस कोर्ट ऑफ द वर्साइलेस पैलेस। वर्साइलेस पैलेस के जो है वर्साइलेस पैलेस के जो है इंडोर जो है टेनिस जो है कोर्ट में लोग इकट्ठा हुए। टेनिस कोर्ट पे वर्साइलेस पैलेस का जो इंडोर स्टेडियम था, उसमें टेनिस कोर्ट बना हुआ था, वहां पर क्रांतिकारी इकट्ठे हुए। एंड दे प्लेस्ड नॉट टू डिस्पर्स till the framing of a new constitution for the Republican France। फ्रांस गणराज्य के लिए उन लोगों वहां इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने आप को दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली। उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में जो है घोषित किया कि हम महासभा हैं, राष्ट्रीय जो है असेंबली है, हम ही लोग जो है, इट इज वी दैट विल रूल, ये हम हैं जो शासन करेंगे। इसलिए वहां के लोगों ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया, नेशनल असेंबली के रूप में। इसके पहले वहां स्टेट जनरल थी, स्टेट जनरल, ये नेशनल असेंबली को स्टेट्स जनरल कहा जाता था। स्टेट जनरल वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के रूप में उसको रिप्लेस कर दिया गया। फिर जो है seeing that the situation is getting out of control and the revolutionaries are getting becoming more and more success everywhere, then Louis XVI felt that it will be rather better to concede the demands of the revolutionary and to recognize them। तो लुई 16 ने ये समझा कि बेहतरी इसी में है कि हम जो है क्रांतिकारियों की मांगों को कंसीड करें, उन्हें मान्यता प्रदान कर दें। एंड फाइनली इट वाज डन, और अंततः यही हुआ कि उनको जो है नए संविधान को मान्यता देनी पड़ी लुई 16 को। और पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ए मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की
sought to be established there in France। और इस तरह से फ्रांस में पहली बार जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, in which now the kings had to act not arbitrarily or absolutely but as per the provisions of the constitution। अब राजा को मनमाने ढंग से काम करने का अधिकार नहीं था, उसके ऊपर जो है संवैधानिक नियंत्रण लगा दिए गए थे और उसी संविधान के उपबंधों के अकॉर्डिंग ही काम करना था। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो, एंड टू से and study the rest, you have to take the next part of this video. Thank you so much.